coming in that it doesn't seem that the fire is under control. Those visuals on your screen, ladies and gentlemen, it's not just the firefighting, the local firefighting forces, also the military police has been mobilized to take control of the entire situation. Those visuals on the left side of your screen where the fire is raging from the 3rd, 4th, 5th to the 6th floor. And as my colleagues were pointing out, the State Health Ministry had just furnished the entire area on the 6th floor, and that has been gutted in this fire. From the 3rd to the 6th floor have all been gutted in this fire. This started around 4 p.m. It is likely to be a short circuit. There were about 1,000 people inside this building around 4 p.m. Once this blaze started, they were all moved out immediately. Currently, there are no people, fortunately, inside this building, but the firefighting operations are on a war footing, but they are facing a lot of problems because there is a disruption that they are facing when it comes to dousing the area with water because of not just the height of the building, but also there are disruptions being created because of the walls. Also, at the same time, while they are dousing the fire at one spot, because of the high winds, the fire is raging on the other spot, which is why the Chief Minister of Madhya Pradesh has called Defence Minister Rajnath Singh. He has given the order to the Indian Air Force to mobilize teams to douse this fire from the sky. So that mobilization order has been given. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan monitoring the situation. Already 2 state ministers are on the ground. Narottam Mishra as well as Vishwas Sarang. They are on the ground to ensure that there is no hindrance when it comes to the firefighting operations. I'm also joined by Jeetu Patwari, Congress MLA on the broadcast. Sir, ये बहुत बड़ा ब्लेज भोपाल में अभी इमर्ज हुआ है. फायर फाइटिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन ये आग बुझने में बहुत टाइम लग रहा है. 8 घंटे हो गए हैं और चीफ मिनिस्टर ने अभी डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया है ताकि वो एयरफोर्स आके इसे बुझा सके. बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर ने 8 घंटे बाद एयरफोर्स क्यों बुलाई जब इतनी बड़ी आग थी तो. और बात यह है कि आग बार बार वल्लभ भवन में या सतपुड़ा भवन में क्यों लगती है. 18 सितंबर 2018 में भी लगी थी है. तो ये आग हमारे मध्य प्रदेश के सचिवालय में क्यों लगती है. रही बात सेना लगानी पड़ी, आग बुझ जाएगी, पर आग पहले लगी थी, उसके नुकसान आज तक पता नहीं चले. किसने लगाई थी, किन कारणों से हुए थे, दोषी कौन है, आज तक पता नहीं चला. तो अल्टीमेटली ये सरकार चल रही है सर्कस. अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं डिलिबरेटली आग लगाई है. 50% कमीशन के एविडेंस को मिटाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत लगाई गई आग है. अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये साजिश है, ये पूरी ये सरकार ने आग लगवाई है इस भवन पे. सरकारी ऑफिस में आग लगती है और नए ऑफिस में आग लगती है. नया ऑफिस है ये, सब तरह की सेफ्टी, हर तरह की फायर सेफ्टी की इसमें प्रोसेस किया गया है. इसके बाद आग क्यों लगी. इससे पहले 2018 में पुराने वल्लभ भवन में आग लगी थी. क्यों लगी थी. सतपुड़ा भवन में आग हमेशा क्यों लगती है और क्यों, किन लोगों के कारण लगी, कारण पता ही क्यों नहीं चलते हैं. अगर पिछले 18 में आग लगी थी तो अगर किन कारणों से लगी, फिर तो उसका सेफ्टी पॉइंट आपने मैपअप क्यों नहीं किया. ये बात सवाल है या नहीं है. मैं तो कहता हूँ सवाल तो आप पूछ सकते हैं, आप पूरा हक है आपका सवाल पूछने का, पर अभी फोकस होना चाहिए कि ये फायर डाउज हो जाए. आप तो अभी से ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. ये आपको पॉलिटिक्स दिख रही है, हमें मध्य प्रदेश का भविष्य दिख रहा है. हमें ये करप्शन जो अद्भुत कर्जा ले लिया मध्य प्रदेश की सरकार ने 4 लाख करोड़ का और उसमें करप्शन किए, वो दिख रहा है. आपको पॉलिटिक्स दिख रही है और हमें वो भावना दिख रही है कि जो लोग 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार आग लगती है क्या. Right. Let's not indulge in politics right now. Thank you, Mr. Jeetu Patwari, for sharing your perspective. For now, the need of the hour is to ensure that this blaze is under control. Congress not leaving a stone unturned when it comes to playing politics over this, saying that this was deliberately started by the government in order to hide evidence of corruption. Let's go back to our reporters. Shailendra Chauhan and Jitendra Sharma continue to be with us on the broadcast. Shailendra, अभी ground zero से latest update क्या है? Also, हमें पता लग रहा है कि
एयरफोर्स अपनी ये टीम्स कब मोबिलाइज कर रही हैं? क्या वो मोबिलाइज कर चुके? ओके, वी लॉस्ट शैलेंद्र. लेट मी गो टू जितेंद्र शर्मा हु कंटिन्यूज टू बी विद अस ऑन द ग्राउंड. जितेंद्र, कोई आइडिया है कि ये एयरफोर्स टीम्स की मोबिलाइजेशन का टाइमलाइन क्या है? वो कितनी देर में यहां पहुंच सकते हैं? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं वहां पे ग्राउंड टीम्स इस ब्लेज को डाउस करने में असफल हो रहे हैं, पर इसकी एयरफोर्स टीम्स ही इसको डाउस कर सकते हैं, और वो ऑर्डर तो रक्षा मंत्री से आ चुका है. उनकी मोबिलाइजेशन का कोई टाइमलाइन है आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें तो हाफ एन आवर के अंदर यहाँ पर अब जो हेलीकॉप्टर के द्वारा, सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा फायर रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा. देख सकते हैं आग लगातार अनकंट्रोल होती जा रही है. पिछले 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आपको ये आग की लपटें उड़ती हुई नजर आ रही हैं. तो जाहिर सी बात है अब सेना का हेलीकॉप्टर एकमात्र विकल्प है, क्योंकि सारे प्रयास विफल हो चुके हैं. हाइड्रोलिक क्रेन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जो वहां तक हाइट तक पहुंच जाए. ये अगर बात करें तो 7-8वीं मंजिल है ये, जमीन से लेकर ग्राउंड फ्लोर से लेकर, और सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है, मगर सारे जलकर खाक हो चुके हैं. बस आग को बुझाना अब एकमात्र विकल्प बचा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार बात की है, मगर आग की लपटों का ये आप अंदाजा देख सकते हैं कि इन आग को अगर बुझाया नहीं जाएगा तो ये आग सुबह तक यूं ही धधकती रहेगी. और इसी की तरह अगर बात करें दूसरा पहलू, यहाँ पर जो कांच लगे हैं, ग्लास लगे हैं हर बिल्डिंग में, वो आग की लपटों से ब्लास्ट हो रहे हैं. अंदर जो इक्विपमेंट रखे हैं, एयर कंडीशनर लगे हैं, वो भी लगातार ब्लास्ट होते जा रहे हैं. तो दूर सेफ्टी पर्पज से मीडिया पर्सन एंड दूसरे लोगों को यहाँ से दूर कर दिया है, मगर यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि जल्द ही सेना का हेलीकॉप्टर आएगा. उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त व्हीकल्स यहाँ पर कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि लाइट्स वगैरह भी प्रॉपर होना चाहिए. उसके अलावा उसके बाद टारगेट किया जाएगा प्रॉपर विंडो को, वहां पर फिर एयर प्रेशर दिया जाएगा जिससे आग को कंट्रोल किया जाए. तकरीबन हाफ एन आवर का टाइम और लग सकता है. उसके बाद आपको इन्हीं आसमानों में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आएंगे जिनसे यहाँ पर फायर रेस्क्यू किया जाएगा. मगर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही ये पहुंचे और आग पर काबू पाए. Right, so that's the latest update that's coming in, ladies and gentlemen, that in the next 30 minutes we could see the Air Force mobilize helicopters above the fire to douse this entire blaze. And what we are learning by my colleague Jitendra, who's joined us on the broadcast from Ground Zero, is that there is a lot of flammable material inside this building, including air conditioners, which have flammable gas inside them, and they are exploding as this fire spreads, which is why a lot of the civilians and especially the media personnel like our team, the News 18 team that's on the ground, they have been moved farther away from the site, so that they don't get caught in the blast. Because a lot of flammable material is inside this building. As I was pointing out, these include air conditioners with flammable gas inside. You have other areas where flammable material is still inside the building and it is prone to a lot of blasts. So which is why a lot of civilians, including the media teams, have been moved a little away from this entire site. But the big problem is that this fire, which is raging from the 3rd, the 4th, the 5th, all the way to the 6th floor, which house the State Health Ministry's office, these have been completely gutted and the fire is only spreading. And the firefighting operations are facing a lot of hurdles. Number one, there are a lot of obstructions which are preventing them from pouring water over, where the fire is raging. There's a lot of obstructions which are preventing a direct hit at the blaze with water so that they can douse the fire. At the same time, a lot of wind is rushing through the area, which is only adding fuel to the fire. The fire is just raging because of the heavy winds and it's spreading because of that. And what we are learning is that around 4 p.m. is when the fire started. There were about 1,000 people inside this building who were immediately evacuated. So fortunately, there is no one trapped inside. There has been no loss of life has been reported. The only aim is to ensure that this fire is brought under control. And as my colleague Jitendra was pointing out, in the next 30 minutes, we could see helicopters fly over the building and douse the fire with water from the sky. But as Jitendra is also pointing out, military police teams and firefighting teams are still trying to find a way to get to this fire that's raging from the 3rd, 4th, 5th, all the way to the 6th floor in order to at least get a direct shot at the fire to douse this blaze. So that is the big update that's coming in. In the next 30 minutes, we could see
aircraft over the blaze and douse it from the sky, because the ground teams are facing a lot of problems. Jitendra continues to be with us on the broadcast. Jitendra, और कितनी teams अभी mobilize हुई हैं? क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं कि एयरफोर्स अपनी टीम्स मोबिलाइज करे ताकि ऊपर से ये फायर डाउज हो सके, लेकिन अभी ग्राउंड पे क्या क्या प्रेपरेशंस चल रही हैं? क्योंकि ग्राउंड टीम्स भी अटेम्प्ट कर रही होंगी इस पूरे एरिया का पेरीमीटर बनाने के लिए और एक जगह ढूंढने के लिए ताकि वो इस फायर को टैकल कर सके। ग्राउंड टीम्स अभी क्या क्या कर रही हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो सेना ने मोर्चा संभाल लिया। पिछले 3 घंटों से सेना यहाँ पर मौजूद है, उसने यहाँ पर पूरे एरिया को टेक ओवर कर लिया है। फायर फाइटर्स भी अब उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं, वही डायरेक्शन दे रहे हैं। और अगर बात करें तो आसपास की जो लाइट्स थी वो पावर कट कर दिया गया था, मगर अब इन्हें जला दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अब अगर सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचता है तो उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर डार्कनेस की वजह से एरिया को जो है टारगेट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर आसपास जो लाइट्स हैं इन्हें अब चालू कर दिया गया है। मौके पर अगर बात करें तो भोपाल पुलिस कमिश्नर और भोपाल कमिश्नर यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। दो मंत्री जो सरकार के थे वो आकर यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, मगर अब यहाँ पर सेना पूरे जो है इस पर कभी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। और कुछ देर बाद जैसे ही यहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे, उनको टारगेट, हालांकि जो रिफिल करके रखी जा रही हैं ये वाटर कैनन है नगर निगम की और अलग फायर फाइटर्स की जो वाटर कैनन है, बड़े पैमाने पर इन वेंस को कंप्लीट करके रख दिया गया है। और क्योंकि ऊपर से अगर जब हेलीकॉप्टर के जरिए इन आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा तो यहाँ पर एक सोर्स यह भी रहेगा कि अगर आग फिर से भड़कती है तो फिर इसे यहाँ से जमीनी स्तर से भी बुझाने का प्रयास किया जाएगा। मगर आप देख सकते हैं आग की तीव्रता, आग कितनी तेज भयानक हो चुकी है कि फिर जो सबसे ऊपर 7वां फ्लोर है जो टॉवर कहलाता है, वहाँ पर आग की लपटें हैं और नीचे वाले फ्लोर पे भी है जो 4th फ्लोर कहला रहा है। इन सारे फ्लोर्स पे हेल्थ मिनिस्टर और ट्राइबल का ऑफिस है, इन सारी जगह की फाइलें, डॉक्यूमेंटेशन सारे जलकर खाक हो चुके हैं। उन्हें बचाने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों तक पूरा ये डार्क धुआं है जो पूरी तरफ से फैल चुका है। अब आसपास के लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। पुलिस मौके पर आ चुकी है, लगातार अब मॉनिटरिंग की जा रही है कि बस जब सेना के हेलीकॉप्टर आए तब उसका एकमात्र ही सहारा है जो इस आग को बुझाया जा सकेगा। मगर तब तक सिर्फ उम्मीद है और एक विश्वास है कि यहाँ पर सारे लोग टिके हैं, सारे लोग मुस्तैद होकर अब इंतजार कर रहे हैं कि सेना के हेलीकॉप्टर के बाद ही अगला कदम आगे बढ़ाया जाएगा। Right, so we have the military, we have the local police, we have ministers, and this fire has now even spread to the 7th floor. That's what my colleague Jitendra is telling us. 7th floor is the highest floor of this building. So it's the 3rd, 4th, 5th, 6th, and the 7th floor that is also where the fire has reached, as the fire is gutting all these floors where a lot of important government documents have been are in place, and they have all been destroyed. That's the latest update that's coming. The military teams, the police teams, and 2 ministers are currently on the ground to coordinate the firefighting operations. But at the same time, as my colleague Jitendra is pointing out, everyone is waiting for the Air Force teams to reach the site to douse this fire from the sky, because there are a lot of obstructions that the firefighting teams on the ground are facing. Jitendra, ground teams क्या-क्या problems face कर रही हैं, क्योंकि इस ब्लेज पे एक डायरेक्ट शॉट क्यों नहीं मिल पा रहा है उनको वाटर कैनन्स के साथ? क्या बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो उन्हें स्टॉप कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो आपको हम आसपास का जियोग्राफिकल एरिया दिखाते हैं कि यहाँ पर प्लांटेशन है, आसपास यहाँ पर प्लांटेशन बने हुए हैं, लगे हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर व्हीकल अंदर मूव नहीं कर पा रहा है, और वो टारगेट एरिया अगर बात करें तो वहाँ पर वो वाटर कैनन वो नहीं पहुँच पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आसपास पेड़ हैं, फिर आगे इसका एक अलग ओपन स्पेस है, तो वहाँ व्हीकल नहीं पहुँच पा रही है। इसकी वजह से ये काफ़ी लीड लंबी हो रही है। हालांकि एयरपोर्ट और सेना की जो एक हाइड्रोलिक ट्रेन आई थी उसने जरूर उस तरफ टारगेट किया और वहाँ की आग को कंट्रोल कर दिया, मगर इस तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, इस वजह से वहाँ टारगेट नहीं किया जा रहा है और ना ही हाइड्रोलिक मशीन पहुँच पा रही हैं। और प्रॉब्लम हालांकि अब उजाला है, उजाला होने का, मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि जमीन से अगर बात करें तो काफ़ी ऊंचाई पर है ये 7th फ्लोर। वहाँ तक टारगेट करने के लिए वाटर कैनन के पास पर्याप्त प्रेशर नहीं है, तो एक उम्मीद यही है कि अब हेलीकॉप्टर के जरिए उस आग को बुझाया जाए। और साथ ही सारे तरफ से ये कवर्ड है, कांच से कवर्ड है, तो पानी वहाँ तक पहुँचता है, लगता है नीचे जाता है, तो उम्मीद है कि वहाँ तक है तो कांच को तोड़ा जाए, मगर उसके लिए भी हाइड्रोलिक क्रेन की मदद चाहिए, प्रेशर की चाहिए, उसके बाद ही वो अंदर, क्योंकि आग जो है अंदर पूरे फ्लोर पर फैली हुई है,
वहां तक पानी का प्रेशर नहीं जा पा रहा है। यही वजह, और नीचे सीढ़ियों तक धुआं आ रहा है क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग है कवर्ड है, आपको आसपास पूरे एनवायरनमेंट में धुआं नजर आ रहा होगा। यही वजह है कि जो फायर फाइटर हैं उन्हें भी काम करने में दिक्कत महसूस हो रही है। पिछले अगर बात करें तो 8 घंटे से ज्यादा के वक्त हो चुका है। ये लोग भी लगातार मौके पर वर्क कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम भी लगातार मौके पर मुस्तैद है और हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए फिर से टारगेट किया जा रहा है। उस जगह पर आपको लाइट फोकस दिख रही होंगी, उस जगह पर फिर से एक बार वाटर कैनन से वहाँ पर प्रेशर दिया जा रहा है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि वाटर कैनन से प्रेशर किया जा रहा है ताकि उस विंडो पर पर्टिकुलर, मगर विंडो से जितना प्रेशर जाता है और पूरा हॉल, पूरा लंबा चौड़ा हॉल है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर बात करें तो हेल्थ का है, ट्राइबल का है और अलग अलग डिपार्टमेंटेशन है। लोगों के कैबिन हैं, अधिकारी यहाँ बैठते हैं, कमिश्नर हेल्थ यहाँ बैठते हैं तो उनका कैबिन है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगर बात करें तो हेल्थ कमिश्नर का ऑफिस 80 फ्लोर पे है। तो सारी चीजों को अब ये नोटिस किया जा रहा है, ये टॉर्च से फोकस आउट कर उस जगह पर प्रेशर किया जा रहा है ताकि उस जगह की विंडो पर पानी पहुंचे और आग को कंट्रोल किया जा सके। मगर बीच में कुछ पेड़ पौधे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी वजह से इस आग को काबू पाने में इतना वक्त लग चुका है। और ये अभी कह सकते हैं कि बड़ी आग है। जो ऊपर आप देख सकते हैं वो टॉप फ्लोर पर आग का गोला खत्म नहीं हो रहा है। उसे बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ही लेना एकमात्र विकल्प है। जी, so as my colleague is pointing out, when it comes to the water cannons that have been deployed on the ground, they don't have the range to douse the fire all the way to the 7th floor. There are a lot of plants around the area, which is making it difficult for the firefighting teams to take positions. Also, there's a lot of smoke also emanating from this building, which is making firefighting operations very difficult. All eyes are on the Air Force teams that can douse this fire from the top. Remember, this blaze has erupted from the 3rd floor and has gone all the way to the 4th, 5th, 6th, and now on the 7th floor. We'll continue to